آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کسی حد تک ڈیزم پر مبنی ہے۔ میں نے 3 مہینے تک تصوف پر عمل کیا اور دن میں 5 وقت نماز پڑھی۔ کبھی کبھی میں خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کمرے سے نہیں نکلتا تھا، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا، سب کچھ بگڑتا گیا۔ لوگوں کی تقدیر پہلے سے لکھی ہوتی ہے۔ ایک 3 سالہ بچے کی قسمت میں خدا عصمت دری کیوں لکھے گا؟ اور وہ عصمت دری کرنے والے کا ایسا انجام کیوں لکھتا ہے؟ میں خالق کو مرد الزام ٹھہراتا ہوں، کیونکہ اگر ضروری ہو تو خدا ہر کسی کی مرضی کو محدود کرے، لیکن کسی بھی قسم کی برائی نہیں ہونی چاہیے۔ میں کہہ سکتا ہوں میں اس کے انصاف کا احترام نہیں کرتا۔ کیا آپ ایک ریپسٹ کے برابر ہونا چاہتے ہیں؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ کیا یہ ویڈیو یوٹیوب پر شائع کرنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارا آج کا موضوع عقائد کے بارے میں ہے۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ ڈیزم پر مبنی ہے۔ میرا مطلب ہے میں قبول کرتا ہوں کہ کوئی خالق ہے، یہ ایک وسیع کائنات ہے، یہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، میں اس سے متفق ہوں، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں اس کے انصاف کا احترام نہیں کرتا، میں نہیں جانتا، اور یہ میرے حسد کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ میری عمر کے ہیں جو BMW اور پورش چلاتے ہیں، میں اسے دیکھتا ہوں اور میں سوال کرتا ہوں کیوں؟ میں یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، میں نہیں جانتا۔ میں اس وقت یہ سب کچھ کر رہا تھا، یہ باتیں کرتے ہوئے بھی میں یہ سب کچھ کر رہا تھا، ان ٹیٹوؤں کے ساتھ بھی۔ ایک بھائی کا شکریہ، میں نے 3 ماہ تک تصوف پر عمل کیا، میں نے دن میں 5 وقت نماز پڑھی، لیکن کچھ بہتر نہیں ہوا، سب کچھ بگڑ گیا۔ میں نے سوچا اور کہا خداوند عالم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایسے وقت تھے کہ میں دعا کرنے اور خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کمرے سے نہیں نکلتا تھا، لیکن کس وجہ سے کچھ بھی بہتر نہیں ہوا اور سب کچھ بگڑتا گیا۔ جب میں ماضی میں دیکھتا ہوں تو ان لوگوں نے جنہوں نے نہ دعا کی نہ شکر ادا کیا ہمیشہ ترقی کی۔ میں نے کہا کیا یہ آپ کا انصاف ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چھوٹے بچوں کی عصمت دری کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اے میرے رب، تو بہت عظیم ہے، تو طاقتور ہے، تو زبردست ہے، تو مدد کیوں نہیں کرتا؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو قدم بقدم ڈیزم کی طرف لے گیا؟ ہاں، ہم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں نے آپ کو بہت مخلص پایا، شکریہ۔ لہٰذا آپ سچے دل سے بات کر رہے ہیں اور ایک سیدھے سادے آدمی لگتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، اگر آپ کو آپ کے سوالات کے تسلی بخش جوابات مل جائیں تو کیا آپ اسلام کی طرف رجوع کریں گے؟ یقیناً میرے سوالات کے جواب ملنے کے بعد مجھے واپس کیوں نہیں آنا چاہیے؟ پھر بھی اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا، کوئی امیر ہو جاتا ہے اور اس وقت اگرچہ میں مسلمان ہوں، میں ایک کافر سے زیادہ غریب ہو سکتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ دنیا میں بہت سے جرائم ہیں، اور آپ نے ذکر کیا ایسے لوگ جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب جب ہم ان دونوں مسائل کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا وجود اسلام اور قرآن کے باطل ہونے کا ثبوت ہے؟ میرے لیے یہ ہے، کیونکہ میرے اس بھائی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا نے مجھ سے کہا آپ جتنا زیادہ دین پر ڈٹے رہیں گے، جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اس نے کہا میں اس پر یقین کر کے اس راستے پر چلنے لگا، اس راستے پر کچھ بھی صحیح نہیں ہوا، سب کچھ صرف بگڑتا گیا۔ اس کے بعد میرے ذہن میں خیالات آنے لگے۔ میں سمجھ گیا، شاید ہم نے ضروری معنی پوری طرح سے نہیں سمجھے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ لوگوں کو یہاں تربیت گاہ کے بطور بھیجا گیا، بالکل اسی طرح جیسے جب ہم کسی لائبریری میں جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اتنی خاموش ہے اور اسے ایک بری چیز نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ اب لائبریری کو پرسکون جگہ ہونا چاہیے، جو کہ لائبریری کا مقصد ہے۔ یا جب ہم جم جاتے ہیں تو لوگ ورزش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو فرش پر خون اور پسینہ بہاتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایک بری جگہ ہے۔ اس کے برعکس ہم کہیں گے کہ واقعی منطقی ہے، کیونکہ اس جگہ کو کھولنے کا مقصد یہی ہے۔ لوگ یہاں تربیت کے ذریعے اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں اور وہ ترقی کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس تناظر میں دنیا کے آغاز کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد لوگوں کی تعلیم کی سطح کو بڑھانا ہے۔ لوگوں کو یہاں روحانی تعلیم اور ترقی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جیسے امتحان، جب ہم امتحان کی بنیاد کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں اس طرح سوچ سکتے ہیں جس طرح جسمانی نشوونما جم میں ہوتی ہے۔ مشکلات اور پریشانیاں بھی ترقی کی نشانیاں ہیں، بس دنیا کی مصیبتیں دلیل ہیں۔ لوگوں کی روحانی ترقی کی دوسرے الفاظ میں یہ اشارہ ہیں۔ پھر جب ہم اسے اس زاویے سے دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا لائبریری کا خاموش ہونا علامت ہے کہ یہ اچھا ہے۔ اس تناظر میں دنیا میں جو مسائل درپیش ہیں، خاص طور پر جب مسلمان ہونے والے کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ روحانی ترقی کی علامت ہوتی ہے۔ اس جگہ کا مقصد خدا کو جاننا ہے اور ساتھ صبر اور آزمائش کے اپنی روحانی ترقی کو آگے بڑھانا ہے۔ ان کا ہونا معمول کی بات ہے۔ بس میں نہ صرف مادی چیزوں کے بارے میں فکر مند ہوں بلکہ مثال کے بارے میں بھی۔ یہ ایک بری صورتحال ہے، لیکن میں ایک مثال دوں گا، ایک 3 سالہ بچی کے بارے میں۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کچھ بزدل لوگ بچوں کو مخصوص واقعات سے روشناس کراتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خدا عظیم ہے، عظیم خدا یہ دیکھ کر ان بچوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ 3 سال کی چھوٹی بچی کا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ اس کی آزمائش اور اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے
देखें, जैसे कि आपने बुनियादी तौर पर कहा, अपनी इबादत में अच्छी तरह इजाफा करने के बाद भी मुझ में उल्टा कमी आई। अब लेकिन जैसा कि हमने कहा, यहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सीखने के लिए मैं इस मौजू पर आपसे एक मुखलिसाना सवाल करना चाहता हूँ। इस मामले में आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार और कसूरवार शख्स है या उसका खालिक अल्लाह है? मेरे ख्याल में ये खालिक है, क्योंकि इंसान की तकदीर पहले से तयशुदा है। तकदीर अलग है, हम इस पर भी बात करेंगे। तकदीर का लिखना मर्जी को नकारा नहीं करता, हम इस पर बात करेंगे। तो खुदा ने 3 साल की बच्ची के लिए और जाति करने वाले के लिए ऐसी तकदीर क्यों लिखी है? मैं समझ गया, ये ख्याल रख सकते हैं क्योंकि तकदीर का मामला कायम नहीं है। आइए इसे वाज़िया करते हैं। बुनियादी तौर पर जब हम वाक़यात को देखते हैं, हाँ, हम जुल्म को देख सकते हैं, हम लोगों को जराइम करता देख सकते हैं, हम उन्हें एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हुए देख सकते हैं। लेकिन जब हम इसका तज्जिया करते हैं, हम देख सकते हैं कि जालिम इंसान है, क्योंकि इंसानों में कुव्वत इरादी होती है। मिसाल के तौर पर आपने आज नीले रंग का स्वेटर पहना है। क्या आपने इसे मुंतखब किया या किसी ने आपको मजबूर किया? मैंने इसे मुंतखब किया। तो ये मर्जी है, ये जुज़वी मर्जी का सबूत है। जैसा कि मैंने आज इसे पहनने का इंतखाब किया। इस वक्त हम सब एक जुज़वी मर्जी के वजूद को जानते हैं। जब हम इस वाक़े को देखते हैं तो लोग अपनी मर्जी से जराइम करते हैं। हम पहले ही जानते हैं कि वो लोग अपने इंतखाब के जिम्मेदार हैं। आइए एक मिसाल देखते हैं। हम देखते हैं कि लोग जराइम करते हैं और हम कुरान पर इल्जाम लगाते हैं। फर्ज करें कि जब एक डॉक्टर ऑपरेटिंग रूम में दाखिल होता है तो जानबूझकर लोगों को छुरा घोंपता है। क्या हम तिब्बी किताबों पर इल्जाम ठहराते हैं? नहीं, हम डॉक्टर को मुर्ते इल्जाम ठहराएंगे। हम डॉक्टरों को क्यों कसूरवार ठहराते हैं? इसका किताब से कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत में आदमी ने किताब की इताअत नहीं की, ठीक है। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाता है और जुर्म करता है, जैसे इस्मत दरी, ज्यादती या कत्ल, तो हम देख सकते हैं कि ये शख्स कुरान की पाबंदी नहीं करता। उस डॉक्टर की मिसाल की तरह, जिस तरह हमने तिब्बी किताब को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया, इसी तरह यहाँ भी कुरान और इस्लाम को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए। इंसान जिम्मेदार है। मैं असल में कुरान या इस्लाम पर इल्जाम नहीं लगाता, मैं खालिक को कसूरवार ठहराता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, आप बहुत अजीम और इतने ताकतवर हैं। हम किताबों में पढ़ते हैं कि खुदा ने माजी में पिछले अंबिया और लोगों की मदद और रहनुमाई की। उसने उन्हें सीधा रास्ता दिखाया। वो आज लोगों को क्यों नहीं दिखाता? दर हकीकत वो लोगों की रहनुमाई भी करता है। वो हमें हल देता है। वो हमें कुरान और सुन्नत से मिसालें दिखाता है। हम अज़्म देख सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, लोग अपनी मर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस डॉक्टर की तरह ना सुनने का इंतखाब करते हैं। बहुत से डॉक्टर सही काम करेंगे और तिब्बी किताब का इतलाक करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि लोगों में कुव्वत इरादी है। आइए बात करते हैं खुदा यहाँ क्यों मुदाखलत नहीं करता। अगर हम इस मौजू को अक्लमंदी के साथ देखें तो हमें नुक्ता नजर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि कोई किसी को छुरा मार रहा या बंदूक से मार रहा है, जब कोई दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला हो और खुदा हमेशा उसे रोके, तो क्या हम बुरे और अच्छे में फर्क कर पाएंगे? अगर मर्जी में रुकावट हो और कोई बुराई ना कर सके, तो क्या आप में और ज्यादती करने वाले में कोई फर्क रह जाएगा? फिर अच्छाई और बुराई की तमीज नहीं रहती। क्या आप रेपिस्ट की बराबरी पर रहना पसंद करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर जरूरी हो तो खुदा हर एक की मर्जी को महदूद करे और कोई बुराई ना हो, सिर्फ अच्छाई हो, कोई बुराई ना करे और कोई जहन्नम में ना जाए। जब हम इस नुक्ता नजर से देखते हैं और लोग पाबंद होंगे, तो एक नेक नीयत और बदनीयत शख्स में कोई फर्क नहीं होगा। मान ले कि इंसान ने अपनी रूह को आलूदा कर लिया है, दोनों में फर्क करने का क्या फायदा होगा? ये तब होता है जब कुव्वत इरादी अमल में आती है। यहाँ खुदा मुदाखलत कर सकता है, लेकिन आम तौर पर तमाम मुदाखलत और जराइम की रोकथाम आज़ाद मर्जी में मुदाखलत करेगी। फिर क्या होगा? लोग कहेंगे मेरे पास अपनी मर्जी नहीं है, मैं कसूरवार नहीं हूँ। फिर ये कैसा होगा? इससे सजा और जजा का मकसद फोत हो जाएगा। एक नेक और बुरे शख्स का दर्जा यकसां हो जाएगा। आपने कहा कि आप एक रेपिस्ट के बराबर खड़े नहीं होना चाहते। वो कौन सी चीज है जो आपको मुमताज करती है और मुख्तलिफ दर्जा देती है? अच्छे दिल वालों और बुरे दिल वालों में क्या फर्क है? ये आज़ाद मर्जी की मौजूदगी है। दूसरे अल्फाज में कुव्वत इरादी के साथ अच्छाई सामने आती है और बुराई बेनकाब होती है। हम इसे शफकत से देखते हैं। ये मुझे भी परेशान करता है, इसलिए मैं जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। लेकिन रहम करने वाले के लिए यह नामुमकिन है कि वो खुद रहम दिल ना हो। लेकिन जब हम इसे वसी दायरे में देखते हैं तो लोगों को सताया जा सकता है। आइए इस तरह सोचते हैं। मिसाल के तौर पर एक बहुत बुरे ख्वाब के बारे में सोचो। कभी कभी इसमें काफी वक्त भी लगता है, ठीक है। हम कहते हैं कि आपने एक ख्वाब देखा है जो आपके ख्याल में 80 साल तक जारी रहा और ये खौफनाक है। जैसे ही आप इस ख्वाब से बेदार होते हैं, क्या आप पानी के एक प्याले से सब कुछ भूल नहीं जाते? हम इसे ख्वाब कहते हैं और भूल जाते हैं। एक गिलास पानी के साथ अगर खुदा हमें ख्वाब के इस दर्द को भुलाने की तौफीक दे सकता है,
जो हमें लगा 80 साल का है, तो वो हमें अब्दी जन्नत के बदले इस दुनिया की परेशानियों को भुलाने की तौफीक क्यों नहीं दे सकता। हम अबदी जन्नत के बारे में बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि खुदा अपने तमाम बंदों से यकसा मोहब्बत करता है, ठीक है, तो वो क्यों चाहता है कि लोगों में बुरी रूह हो? वो चाहता तो किसी को बुरा नहीं बनाता। खुदा अपने बंदों के लिए अच्छा चाहता है, लेकिन लोगों को एक नेमत दी गई है जिसे जुज़वी मर्जी कहा जाता है, ताकि वो अपनी सलाहियत का मुजाहरा करें। लोग इस जुज़वी मर्जी को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। मसलन आग का वजूद खुशगवार है ना? ये हमारी जरूरत को पूरी करती है, लिहाजा ये अच्छी है। इससे बहुत से फायदे हैं। अलबत्ता अगर कोई अपनी कुव्वत इरादी के साथ आग तक पहुंच जाए और जानबूझकर अपना हाथ जला दे, क्या हम कह सकते हैं आग का वजूद बुरा है? हम ये नहीं कह सकते, ये बहुत गैर माकूल होगा। वो नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से ही जाहिर था कि ऐसा होगा। ये नहीं कह सकते, ये उस शख्स का कसूर होगा। इसी तरह कुव्वत इरादी का वजूद, जुज़वी कुव्वत इरादी, एक बड़ी नेमत है, क्योंकि ये नेक और बद में फर्क करती है, और इसका वजूद ही लोगों को इंसानियत के दर्जे पे लाता है और उनकी कदर बढ़ाता है। लेकिन जैसे कोई शख्स आग में हाथ डालता है या किसी को छुरा घोंपता है, अगर वो किसी को कत्ल या नुकसान पहुंचाकर इस कुव्वत इरादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जुज़वी मर्जी की तख्लीक बुरी और गैर इखलाकी है? खुदा ऐसा क्यों चाहता है? बिल्कुल आग की मिसाल की तरह हम ये नहीं कह सकते, ठीक है। जब हम इसे इस तनाजुर में देखेंगे तो हम कहेंगे हाँ, इसकी तख्लीक अच्छी है और इसके बड़े फायदे हैं, लेकिन बुरे लोग हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, आखिरत की जिंदगी है, जन्नत में अब्दी खुशी अच्छे लोगों की मुंतजिर है, और वो लोग जिनका आपने जिक्र किया, जिन पर हमें बहुत गुस्सा आता है, उन्हें इंसाफ के साथ सजा दी जाएगी। ये ऐसा ही है जैसे कि एक सुल्तान का जन्नत और जहन्नम के साथ इंसाफ करना। क्या मैं आपको किस्मत के बारे में बताऊं? ये ऐसा कह लें, तकदीर खुदा का इल्म है। हम बाज़ औक़ात मुदाखलत और इल्म को उलझा देते हैं। जिस तरह सूरज के मुख्तलिफ रंग होते हैं, मिसाल के तौर पर कह लें कि एक पीला है और एक सुर्ख है, ये दो मुख्तलिफ खसूसियात हैं। इसी तरह अल्लाह का नाम अल अलीम है, अल्लाह का जानने वाला नाम। हम इस नाम के साथ किस्मत पर गौर कर सकते हैं। उसका दूसरा नाम अल कादिर है। हम तख्लीक जैसे अमाल के बारे में सोच सकते हैं। खुदा जानता है, लेकिन क्या वो हमारे साथ मुदाखलत कर रहा है? हम दो मुख्तलिफ तसव्वुरात को उलझा देते हैं। ये सूरज के दो मुख्तलिफ रंगों की तरह है। खुदा का नाम अल अलीम अलग है और अल कादिर अलग है। फिर हम कहेंगे हकीकत ये है कि खुदा कुछ जानता है, उसका मतलब ये नहीं कि वह मुदाखलत करे और हमें मजबूर करे। इनमें मुख्तलिफ खसूसियात हैं। फिर हम कहते हैं कि अगर ये हमारी किस्मत में पहले से लिखा हुआ है तो इसमें हमारा कसूर कैसा? हकीकत में ऐसा नहीं है। खुदा ने ये लिखा है क्योंकि वो जानता था कि हम ये करेंगे। एक छोटी सी मिसाल से बात खत्म करते हैं। फर्ज करें कि दो गाड़ियां मुख्तलिफ सिमत से आ रही हैं। हम इसका हिसाब लगाते हैं और कहते हैं कि वो 8 सेकंड में टकराएंगी। आपने इसे कागज के टुकड़े पर लिखा और एक तसादम हुआ। ये जाहिर था। लोग आपके पास आकर कह सकते हैं हम आपस में टकरा गए क्योंकि आपने इसे कागज पर लिखा था। आप कसूरवार हैं। बिल्कुल ठीक है। जाहिर है आपने अपने इल्म से इसकी निशानदही की और उसके मुताबिक लिखा। आपकी तहरीर आपके इल्म पर मुनहसर थी। इल्म मालूम चीज पर मुनहसर है। इसी तरह हमारी तकदीर के बारे में खुदा का लिखना उन वाकयात पर मुनहसर है। हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि खुदा जानता है, बल्कि खुदा जानता है कि हम क्या करेंगे और वो उसी के मुताबिक लिखता है। पिछली मिसाल की तरह, मतलब हमें तकदीर के मामले पर इसी तरह गौर करना चाहिए। लिहाजा अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी जिम्मेदारी उस शख्स पर आयद होती है। मैं समझ गया, ये अब बिल्कुल वाज़ेह है। क्या ये सब वाज़ेह है? जैसा कि मैंने कहा, मुझे हमेशा खुदा पर यकीन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी बड़ी कायनात अपने तौर पर वजूद में नहीं आ सकती। ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं हो सकता। ये वो सवालात थे जिन्होंने मुझे परेशान किया। क्या कहते हैं आज दीन की तरफ पलट जाएं? चलो ये करते हैं। आपको शहादत याद है ना? यकीनन, बिला शुबा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।